Good morning, students. Today we will discuss respiration in human being. In human being, the respiratory organ is lung. Okay, so this lung is the respiratory organ. Now, this lung is very delicate, soft and spongy. Soft, delicate and spongy. So to protect these lungs are present in thoracic cavity. Okay, so this lung is present in a cavity. That cavity is called what? Thoracic cavity. Thoracic cavity. This thoracic cavity is made up of backside vertebral column and the spines of vertebral column. Vertebral column. Front side, sternum is there. Sternum is a chest bone. Sternum. On side, both sides, ribs are there. Ribs. Total number of ribs is 24, means 12 pair it is, 12 on the left side and 12 on the right side. So this thoracic cavity is made by these bones, back side vertebral column, front side sternum, जिसको छाती की हड्डी कहते हैं, and sides में क्या है? Ribs, 12 pair ribs. तो ये जो कैविटी बनाया उसमें क्या हमारा प्रेजेंट है? लंग्स के लिए, ताकि इसको किसी प्रकार से मैकेनिकल इंजरी ना हो. ठीक है, तो बेटा अभी जरूरत क्या है कि लंग्स तो प्रेजेंट है थोरासिक कैविटी में, तो अब लंग्स में हवा जाए कैसे? तो लंग्स में हवा जाए उसके लिए हमारे बॉडी में क्या है? रेस्पिरेटरी पैसेज. सो व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी that you see? This respiratory passage starts with respiratory passage. कहां से स्टार्ट हो रहा है? बाहर में नोस्ट्रिल से. नोस्ट्रिल, two nostrils in the both nose. We have two nostrils. These nostrils open into nasal cavity. Nasal cavity. Nasal cavity opens into pharynx. ये pharynx आपको पता है, this is common for the food as well as air. This pharynx open into pharynx. After that larynx is there. Larynx, which is called sound box, producing sound box, sound producing organ. Okay, then larynx opens into trachea. Trachea in the chest cavity, this divided into bronchus. Bronchus opens into bronchioles. Okay, and bronchioles last it opens into alveoli. Alveolus is singular. Singular is क्या है बेटा? Alveolus. एक को alveolus कहेंगे और बहुत सारा है इसलिए क्या कहते हैं? alveoli. और it is also called air sacs. Air sacs कर सकते हैं, otherwise it is alveoli. तो ये हो गया
रेस्पिरेटरी पैसेज, जहां से और ऑल, यहाँ पर ऑल एल्वियोलाई टुगेदर क्या बनेगा, लंग्स बनेगा। सो एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, लंग्स का। तो ये पैसेज है, यहाँ तक पैसेज हो गया। नॉस्ट्रिल से हवा घुसेगा, कहाँ जाएगा, नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से हवा फारिंग्स में जाएगा, फारिंग्स से लारिंग्स साउंड प्रोड्यूस करना है तो, अदरवाइज फारिंग्स टू कहाँ आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकस, ब्रोंकस टू ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स खुल जाएगा बहुत सारे एल्वियोलाई में, जहां पर एयर का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, one by one. So first of all, we are starting with nostril. So what is the function of nostril? How many nostrils we have? We have 2 nostrils. Number of nostril is 2. 2 nostril है हमारे पास. And main function of nostril is air enters. इसका function क्या है? Air enter in the nasal cavity or respiratory passage. Entry of air. Entry of air from surrounding to respiratory passage. To respiratory passage. और respiratory system भी बोल सकते हैं, respiratory system. ठीक है, तो एयर मेन फंक्शन क्या हो गया नोस्ट्रिल का, एयर को एंट्री करना, वातावरण से हवा कहाँ जाएगा, हम लोग वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सो वी आर टेकिंग एटमॉस्फेरिक एयर फॉर द रेस्पिरेशन। तो ए एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है, ऑलरेडी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल टुगेदर मिक्सचर एयर वी आर टेकिंग फ्रॉम द नोस्ट्रिल इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर रहा है। नाउ सेकंड इज नेसल कैविटी। सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा, नेसल कैविटी। सी नेसल कैविटी इज अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। दिस नेसल कैविटी, थ्रू नेसल कैविटी एयर इंटर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू फेरिंग्स तक जाएगा, बट दिस नेसल कैविटी हैज 2 स्ट्रक्चर। वन इज हेयर, one hair is also present in the nasal cavity, and second one is, this is first part present, and second part is mucus. See, the epithelial tissue present in the nasal cavity contains hair. That hair, main function of hair is it filters the air. The air which are entering from the atmosphere, they contain dust particles, they contain pollen grains, they contain fungus. So many particles are present in this air. So this hair filtering the air, filter कर दे रहा है, filter क्या कर रहा है, filter the air को ये filter कर रहा है बेटा। ठीक है, और म्यूकस जो है वो क्या कर रहा है, मॉइस्ट कर रहा है, जो हवा एंटर कर रहा है उस, अगर वो हवा बहुत ज्यादा ड्राई है तो अगर हमारे नेसल कैविटी में वो हवा जाएगा तो ये म्यूकस जो प्रेजेंट है उसको क्या कर देगा, थोड़ा मॉइस्ट कर देगा, बिकॉज ऑल द रेस्पिरेटरी पासेस, इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पासेस इज वेरी डेलिकेट। तो ड्राई एयर जाने से क्या हो जाएगा, अंदर तक का पार्ट सूख जाएगा, इसलिए ये जो म्यूकस जो है वो हवा को क्या कर दे रहा है, मॉइस्ट कर रहा है। अब जो हवा जो अंदर जाएगा, नेसल कैविटी से हवा कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, और उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, तो हवा नमी रहेगा उसमें, और साथ ही साथ वो डस्ट फ्री हवा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए दिस, ड्यू टू दिस 2 रीजन इट इज एडवाइज्ड, ठीक है, कि हम लोग को सलाह दिया जाता है, वी शुड ब्रीथ थ्रू नेसल कैविटी, थ्रू नोज, नॉट थ्रू माउथ। कितना किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो भी है, आदत भी है कि नाक बंद हो गया, मुंह, नाक बंद करके मुंह से खराटा ले रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, हवा तो जा रहा है, बट इन द बकल कैविटी और इन द बकल कैविटी हेयर इज नॉट प्रेजेंट, सो फिल्टरिंग ऑफ एयर विल नॉट
टेक प्लेस एज वेल एज दिस, जो सांस कभी कभी सर्दी हो जाने से हम लोग को मुंह नाक बंद हो गया तो मुंह से हवा सांस लेते हैं नींद में, तो मुंह भी पूरा सूख जाता है, तो उसी तरह से सूख जाएगा अगर पूरा ये जो पार्ट से जहां तक जाएगा ये। लेकिन नेसल कैविटी में म्यूकस जो प्रेजेंट है वो हवा को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, इसलिए हम लोग दिन रात नाक से सांस लेते हैं, कभी भी हमारा कोई पार्ट सूखता नहीं है। तो अभी बात समझ में आ गया क्यों हम लोग को नाक से सांस लेने की सलाह दिया जाता है, मुंह से सांस नहीं लेना है, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, फायरिंग्स। इसके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। फायरिंग्स क्या है, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ। ये जो फायरिंग्स है ये कॉमन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए भी, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी, और साथ ही साथ यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये दोनों ही कॉमन एरिया है फायरिंग्स, जहां फूड भी जाएगा और जहां पर एयर भी आता है। और एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर फूड भी जाएगा और उसके बाद वहां से क्या आएगा, एयर भी जाएगा। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर फूड भी जाएगा और यहाँ एयर भी जाएगा। अब फायरिंग्स के बाद में अब यहाँ पर से थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ लो फिगर के साथ। यहाँ पर ये हमारा अगर ये यहाँ ये जो दिख रहा है, ये जो ओपनिंग जो यहाँ दोनों नाक में है इसको क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल कहेंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो यहाँ होल है दोनों नाक में, ये होल क्या है बेटा, नोस्ट्रिल है, ठीक है। ये हो गया आपका नोस्ट्रिल। अब नोस्ट्रिल के बाद यहाँ पर ये बकल कैविटी, यहाँ पर माउथ है, माउथ का, और नेसल कैविटी यहाँ पर क्या है, बोनी पैलेट, जो दोनों को ही सेपरेट करके रखता है। नेसल कैविटी, ये नेसल कैविटी है, और ये क्या है, बकल कैविटी, वो दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर क्या है, बोनी पैलेट, सॉफ्ट, यहाँ बोनी पैलेट, हार्ड पार्ट। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाता है, सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट होगा बकल कैविटी का, और यहाँ पर इस तरह से ये नेसल कैविटी के से एयर आएगा, और ये जो फनेल जैसा जो एरिया हुआ ये क्या कहला रहा है, फायरिंग्स, ठीक है। तो ये फायरिंग्स हो गया, यहाँ ये फनेल जैसा जो एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक फायरिंग्स हुआ। अब ये फायरिंग्स के बाद यहाँ पर, यहाँ से आपका दो ट्यूब स्टार्ट हो रहा है। एक ट्यूब पीछे वाला जो ट्यूब है ये क्या है, एसोफेगस, फूड पाइप जिसको कहते हैं, फूड पाइप। और ये सामने वाला जो है ये पोर्शन, ये सामने वाला जो पोर्शन है आगे का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ठीक है। अब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, यहाँ बेस का भी माउथ है, इसके ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं, और इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। ओपनिंग है इसको क्या कहेंगे, गलेट, और ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया का जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ये क्या है, ग्लॉटिस। तो जब फूड की बारी आए, यहाँ पर तो दोनों आ रहा है, ये तो कॉमन हो गया फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। तो फूड भी जब हम लोग खाना खा रहे होंगे तो फूड भी इसमें आ जाएगा आसानी से, और एयर तो आ ही रहा है, इसलिए इसमें फूड इंटर ना करे, इसके ऊपर एक लीफ जैसा इतना बड़ा एक ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो जब फूड आएगा यहाँ से तो फूड क्या करेगा, फूड आने के समय ढक्कन इसको पूरी तरह से क्या कर देगा, बंद कर देगा, ढक्कन ऊपर से, ठीक है। मान लीजिए कि बोलस है, तो जैसे ही बोलस आएगा तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ जो प्रेजेंट है ऐसे इसके ऊपर दम ढक देगा। तो अब फूड इसमें ना जाकर के फूड पीछे वाला जो ट्यूब है गलत के द्वारा फूड पाइप में आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू फूड डू नॉट इंटर इन द ट्रैकिया, क्यों फूड ट्रैकिया में इंटर नहीं कर रहा बेटा, बिकॉज द ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय, ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन जो लगा हुआ है इस ढक्कन को क्या कहते हैं हम लोग, इपीग्लॉटिस। नाम भी बहुत आसान है, ग्लॉटिस के ऊपर है इसीलिए ईपी का मतलब ही क्या होता है, अपॉन। तो इस ढक्कन का नाम क्या हो गया, इपीग्लॉटिस।
तो इस एपिग्लॉटिस जो है ये ट्रैकिया को अच्छी तरह से ढक देगा और फूड इसमें नहीं जाएगा। कभी कभार हम लोग को क्या होता है, समटाइम से फूड इंटर कर जाता है, ढक्कन ठीक से नहीं लगा, बातचीत कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और फूड को शैलो किए, तो उस समय ये फूड का पार्ट्स को कुछ जो है इसमें जाने लगता है। बट दिस इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इज वेरी सेंसिटिव एंड होल जो लाइनिंग है ये क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम। 9th क्लास में याद करेंगे, इसका जो लाइनिंग जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ है, इसलिए सीलिया बीट करने लगता है। जैसे फूड थोड़ा सा पानी कुछ भी आया, देन सीलिया इज वेरी सेंसिटिव एंड स्टार्ट टू बीट, और जो फूड जो है वो बाहर फेंक देगा, नाक से मुंह से आपका फेंक देगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सरकना बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय यही होता है कि एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को अच्छी तरह से नहीं ढक पाया, और नहीं ढक पाने के कारण फूड यहाँ पर आना चालू हो जाता है। बट दिस लाइनिंग ऑफ दिस ट्रैकिया इज वेरी सेंसिटिव, इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम व्हिच डू नॉट अलाउ द फूड और एनी पार्टिकल्स टू एंटर इन द ट्रैकिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि व्हाई डू फूड डू नॉट एंटर इनटू द ट्रैकिया। रीजन बेटा, it is covered by, glottis is covered by epiglottis। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, that if there is no air, that time also this trachea wall of trachea do not collapse, but when there is no food, this food pipe or esophagus get collapsed। Important question, why do trachea do not collapse when there is no air? इसका आंसर क्या है बेटा, दिस ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय C-shaped cartilage। You can feel in your neck also. If you are touching your neck, then you touch the windpipe, you will say at some places it is hard because there is C-shaped cartilage। C जैसा ऐसा है, एक साइड है, इधर फूड पाइप होता है ना, वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो दिस इज क्या है, C-shaped कार्टिलेज है, C-shaped कार्टिलेज है, जिसके कारण इसमें हवा रहे या ना रहे, दिस ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स इफ देयर इज नॉट एयर आल्सो। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन, दिस दोनों एपिग्लॉटिस और एक कोलैप्स नहीं करता है, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि फूड एयर नेसल कैविटी पार करके कहां आएगा, फायरिंग्स के बाद है लैरिंग्स है, वो तो केवल साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। लैरिंग्स लैरिंग्स इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और इस लैरिंग्स के अंदर में 2 वोकल कॉर्ड होता है, स्ट्रेच्ड वोकल कॉर्ड होता है, और एक वोकल कॉर्ड जब हमें बोलना होता है तो हवा को जो एक्सहेल्ड एयर, जो अंदर से जो हवा आ रहा है उसको हम लोग लैरिंग्स से पास करते हैं। तो लैरिंग्स से जाते ही हवा पास करता है, देन ये जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करेगा। और आप जानते हैं जब भी कोई वस्तु या रिबन या कोई भी वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से लैरिंग्स के अंदर का जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ट्रैकिया जो है नीचे चेस्ट में, अभी देख रहे थे ट्रैकिया, इस तरह से ट्रैकिया एक ट्यूब है जिसको कि विंड पाइप भी कहते हैं और इसको ट्रैकिया कहते हैं। इसके ऊपर C-shaped कार्टिलेज होता है। हाँ, ट्रैकिया नीचे चेस्ट कैविटी में आने पर ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसमें से एक पार्ट जो है लेफ्ट साइड की ओर गया, दूसरा राइट साइड की ओर गया, और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकस। यही है ब्रोंकस, सिंगुलर है बेटा। ब्रोंकस ए वाला तुम्हारा हो गया क्या, राइट, लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस, और एक क्या हो गया, राइट ब्रोंकस। ठीक है, अब दोनों ब्रोंकस में भी सिलिएटेड एपिथेलियम पूरा लाइंड है। अब ये ब्रोंकस मिलियन छोटे छोटे ट्यूब में बटेगा, जिसको क्या कहते हैं, मिलियंस, 1-2 नहीं, मिलियंस छोटे छोटे ट्यूब में बटेगा, वो सबको क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और हर जो ब्रोंक्यूल्स है, सपोज यहाँ पर एक ब्रोंक्यूल्स है, लास्ट में इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या में खुलेगा, एयर सैक, और यही क्या हो गया तुम्हारा एल्वियोलाई।
ठीक है, हर कोई जो है यहाँ से इस तरह से खुलेगा, और पूरे लंग्स में अगर ये लंग्स है यहाँ पर, तो इस तरह से इस लंग्स में एक दो एल्वियोलाई नहीं, कितने एल्वियोलाई होंगे, मिलियंस एल्वियोलाई होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो अगर पूछे कि एल्वियोलाई क्या है, ब्रोंकस कहाँ खुल रहा था एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई क्या है, तो एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। सो ये तुम्हारा इधर वाला जो लंग्स हो गया, ऑल एल्वियोलाई टुगेदर मिल करके क्या बनाया, राइट लंग्स बनाया, और इधर वाला क्या बनाया, लेफ्ट लंग्स बना। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के कुछ विशेषताएं हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एल्वियोलाई तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि इसको गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। पहले देखिए कैसे यहाँ पर हवा आएगा इसके द्वारा, नोस्ट्रिल के द्वारा, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, यहाँ पर एक ट्रैकिया है इसमें आएगा, इसके बाद यहाँ ब्रोंकस में आएगा, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में आएगा, और ब्रोंक्यूल्स से एयर कहाँ आया है, इस एयर सैक क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो अभी ये एल्वियोलाई कैसे गैस को एक्सचेंज करेगा, कैसे होगा उसको देख लेते हैं। सी ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जो है रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरी से। तो यहाँ पर ए एल्वियोलर सैक से जहां पर क्या आएगा, एयर आया है। ठीक है, इस एयर में क्या है बेटा, नाइट्रोजन भी है कितना 78%, ऑक्सीजन भी है कितना 21%, CO2 भी है, बाकी रेस्ट अदर है। तो यहाँ पर और ये आपका ब्लड कैपिलरीज है किस चीज का, एल्वियोलाई का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ एयर केवल लिखते हैं, एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, यहाँ O2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और ए जो क्या है ब्लड कैपिलरीज है एल्वियोलाई का, इसमें O2 का मात्रा क्या है, कम है, इधर में ज्यादा है और इधर में कम है। तो ये आराम से जो गैसेज O2 जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा। O2 क्या हो रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, कहां से, एल्वियोलर एयर से ब्लड कैपिलरीज ऑफ द एल्वियोलाई, यहाँ पर आ रहा है, बाय विच प्रोसेस, डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूज करते जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, सो दिस ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इन द सेम वे द blood present in this capillaries of alveoli is coming from the body, return पूरे सेल से रिटर्न होकर क्या आ रहा है बेटा, तो इसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और एल्वियोलर जो एयर है इसमें CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस समय अभी क्या हो रहा है, साथ ही साथ हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोलर एयर से निकल करके जैसे एयर पास करते रहेगा, जैसे ब्लड पास करते रहेगा, CO2 सारा निकल करके ब्लड में से निकल के कहाँ आ जाएगा, एल्वियोलर सैक में आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बोथ इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस तरह से एयर का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पर, एल्वियोलर सैक्स में ना। एक और चीज अभी पढ़ेंगे कि ये जो एल्वियोलाई है, या जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन का जो फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलस, उसका क्या विशेषता है, लाइनिंग ऑफ लंग्स के का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो दैट इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरी स्मूथली। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वियोलाई, characteristics of alveoli. Number one, this alveoli is richly supplied with blood capillaries. Richly supplied with blood capillaries. Second characteristic it has very large surface area.
have very large surface area. See, if the both दोनों लंग्स को अगर हम लोग खोल दें और बिछा दें दिस बोथ लंग्स में, खोल करके बिछा दें तो इट विल कवर 80 मीटर स्क्वायर एरिया. समझे, इतना बड़ा सरफेस एरिया है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि इसको आसानी से गैस डिफ्यूज हो जा रहा है, वो है वेरी थिन वॉल. वॉल ऑफ दिस एल्वियोलाई इज वेरी थिन, सो थिन वॉल. So due to these three features, alveoli help in the exchange of gases. जो अभी देखें, ऑक्सीजन alveolar एयर से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा और ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, alveolar एयर में आएगा. और सारा alveolar फिर मिल करके ट्रैकिया से फिर बाहर निकलेगा एक्सहेलेशन के समय. ठीक है, तो इस तरह से alveolus का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पर है. अब देखेंगे ब्रीदिंग टाइम. ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग टाइम क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर. ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है बेटा, ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस. ए मैकेनिकल प्रोसेस है कंसिस्टिंग ऑफ दो प्रोसेसेस में आएगा, इनहाइलेशन एंड एक्सहाइलेशन. अब देखेंगे इनहाइलेशन क्या है और एक्सहाइलेशन क्या है. इनहाइलेशन, इनहाइलेशन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन. तो व्हाट इज inhalation? तो intake of air from the atmosphere into the lungs. Intake of air from atmosphere to lungs. इसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं या इंस्पिरेशन कहेंगे. और सेकेंड प्रोसेस क्या है बेटा, एक्सहेलेशन. ये पहला हो गया. सेकेंड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन. एक्सपीरेशन दो नाम से इसको जानते हैं. ये क्या है, तो इसमें इनटेक था, उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ एयर. रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम, कहां से, लंग्स से आएगा बेटा, लंग्स टू एटमोस्फेयर. सांस लेना को इनहेलेशन कहेंगे और सांस छोड़ना तो छोड़ते समय लंग्स से बाहर आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लंग्स टू एटमोस्फेयर. ये क्या हो गया, एक्सहेलेशन. इज इट. अब आएंगे हाउ डू दिस इनहेलेशन, बिकॉज इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, सो हियर एनर्जी विल बी आल्सो यूटिलाइज्ड. सो हाउ डू दिस inhalation and exhalation takes place, that we will study in the mechanism of breathing. So how do inhalation and exhalation takes place? Mechanism of breathing. और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहला स्टेप क्या है, इनहेलेशन. तो इस समय कैसे इनहेलेशन होगा देखिएगा. व्हेन फॉर दिस
इनहेलेशन होने के लिए इंटरकोस्टल मसल्स अटैच टू रिब्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, मसल्स अटैच्ड टू रिब्स, इसको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये इनहेलेशन के समय क्या होगा? when this process, when muscles attach to ribs, यहां लिखेंगे बेटा when inhalation कब होगा? when muscles attach to ribs, उसको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इंटरकोस्टल मसल से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल से तो रिब्स जो है वो कहां की ओर जाएगा? देन रिब्स आउटवर्ड की ओर मूव करेगा, देन रिब्स मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड चला जाएगा। एंड सेकेंड साथ ही साथ क्या होगा? डायाफ्राम, डायाफ्राम इज द सेपरेशन बिटवीन थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमेन। तो वो मस्कुलर डायाफ्राम जो है वो भी क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं when muscles attached to ribs called intercostal muscles contract, then ribs moves downward। एंड साथ ही साथ क्या होगा? डायाफ्राम, डायाफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, देन डायाफ्राम PHRAGM, डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब देखना है कि जो रिब्स जो था यहां पर, ये जब रिब्स जो है बाहर की ओर आया, रिब्स बाहर, यहां पर मान लीजिए सपोज यहां पर था इस तरह से, अब ये बाहर की ओर आ गया, यहां था और यहां आ गया, तो इसका एरिया नीचे में क्या है? मस्कुलर डायाफ्राम। जब यहाँ था और मस्कुलर डायाफ्राम यहाँ था तो इतना ही ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा था। अभी ये और कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे चला गया और यहाँ आ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया है? इसका बढ़ गया है। ठीक है, तो इस दोनों ही कंडीशन से ये जो मसल्स अटैच टू रिब्स जिसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो रिब्स बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर आएगा और डायाफ्राम जो है नीचे की ओर आएगा, तो वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और लिखना पड़ेगा बेटा, ये दोनों ही कंडीशन से मसल्स अटैच टू रिब्स, then ribs move outward and diaphragm also contract, तो डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस दोनों ही कारण से वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस एंड जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एंड एयर प्रेशर इन द लंग्स क्या हो गया है? डिक्रीज कर गया है। तो आप जानते हैं जब अंदर में हवा का, लंग्स में एयर का प्रेशर घट गया और एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर ज्यादा है तो हवा ऑटोमेटिकली मूव करता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो ड्यू टू दिस इनसाइड द लंग्स द प्रेशर हैज डिक्रीज, बट एटमॉस्फेयर has high pressure, so air moves from
atmosphere to lungs. बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर रिब्स बाहर की ओर गया और डायफ्राम नीचे की ओर गया, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर वहां क्या हो गया, घट गया। और चूंकि वातावरण में उसी समय ज्यादा प्रेशर है, तो एयर ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स फ्रॉम सराउंडिंग टू एटमोस्फियर टू लंग्स में आ गया। अब लंग्स में क्या है, तो लंग्स में एयर का एक्सचेंज हो जाएगा, जो भी पढ़ चुके। एयर कहाँ चला गया, एल्वियोलर सैक्स में, एल्वियोलाई में चला गया। तो वहां पर इस एयर में से ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में जो रिटर्न होकर के जो खून आ रहा है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एयर एल्वियोलस में है, वो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। वो किस समय होगा, वो होगा एक्सहालेशन के समय। तो ये इनहालेशन हो गया, जस्ट अपोजिट होगा एक्सहालेशन के समय। एक्सहालेशन कैसे होगा उसको देखेंगे। एक्सहालेशन, एक्सहालेशन इस समय क्या होगा, वेन मसल्स अटैच टू रिब्स, वेन मसल्स अटैच्ड टू रिब्स कॉल्ड diaphragm and when muscle attached to ribs called intercostal muscle, intercostal muscle and diaphragm contract, उस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी क्या हो जाएगा, रिलैक्स। Sorry. So when muscles attached to ribs called intercostal muscle and diaphragm relax, then ribs moves inward. Ribs move inward. उस समय कहा गया था बेटा, आउटवर्ड। एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। तो क्या होगा, दोनों एक बाहर से अंदर की ओर आया, एक ऊपर गया, तो थोरासिक कैविटी का क्या हो गया, घट गया। सो द volume of thoracic cavity decreases
एंड इतना दूर का हवा जब इतना में आ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड प्रेशर एंड एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज। एटमॉस्फेयर के समय लंग्स के अपेक्षा अभी एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर जो है वो कम है। एटमॉस्फेयर हैज लो प्रेशर देन लो प्रेशर देन लंग्स। एल्वियोलर एयर भी लिख सकते हैं, देन एयर देन एल्वियोलर एयर। सो अभी क्या होगा बेटा, एयर मूव्स करेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर मींस लंग्स टू, कहां चला जाएगा, लंग्स टू एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। सो एयर मूव किया, मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस ये होता है एक्सहालेशन के समय। क्या हुआ फिर से एक बार देख लेते हैं। मसल अटैच टू रिब्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, दोनों यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिलैक्स किया। तो रिब्स जो है वो कहाँ की ओर आया, अंदर की ओर गया, और डायफ्राम ऊपर की ओर गया, जिसके कारण उसका थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो प्रेशर क्या हो गया, वहां पर हवा में बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने के कारण एटमॉस्फेयर वहां पर हाई प्रेशर हो गया, और बाहर में एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है, इसलिए हवा जो है मूव करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मींस इस बार हवा लंग्स में से निकल के कहाँ आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा, और यही क्या है, एक्सहेलेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 3 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ ए ब्रीदिंग। अच्छा एक चीज और है यहाँ, रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर मींस जब व्हेन वी एक्सहेल आल्सो, तो एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ हवा हमारे लंग्स में बचा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर। So what is residual volume of air? क्या है बेटा? So after exhalation, some amount of air is always present in the lungs, present in the lungs, present in the lungs। यही हवा जो लंग्स में बचा हुआ है, आफ्टर एक्सहेलेशन भी जो हवा बचा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि ब्रीदिंग टाइम क्या है, और ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग जो है आपका कंटिन्यूअस नहीं होते रहता है। ब्रीदिंग जो है वो इनहालेशन, और जो भी है इनहालेशन और एक्सहालेशन जो है स्टेप वाइज में होता है, लेकिन गैसेस का एक्सचेंज जो एल्वियोलस में आपने देखा वहां पर वो कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग पढ़ लेते हैं, ब्रीदिंग टाइम क्या है। तो ब्रीदिंग जो टाइम है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ब्रीदिंग टाइम। ब्रीदिंग टाइम, this breathing time means number of inhalation and exhalation, number of breath in a minute, number of inhalation and exhalation, inhalation and exhalation in a minute, समझे, इन ए मिनट। तो 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग जो टाइम है वो है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, टाइम्स पर मिनट।
ठीक है। 15 से 18 बार हम लोग एक ही मिनट में सांस लेते हैं, ये है जनरल। बट vigorous एक्सरसाइज के समय, वेरी एक्सरसाइज के समय ये टाइम क्या हो सकता है, एक्सरसाइज के समय ये 25 टाइम्स तक जा सकता है पर मिनट में। ठीक है, तो ये अब एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इस ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले O2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ ले। तो O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय, O2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा, O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, एंड CO2 जो है पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, सो इसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लाज्मा। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा in dissolved form। क्यों, बिकॉज इट इज हाईली soluble in water। रीजन क्या लिख सकते हो, CO2 is soluble in, highly soluble in water, highly soluble in water। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट किए। ओके।